ठीक है। क्या हो गया इनको? आगे लाएंगे तो न्यूज़ का नहीं स्टार्ट ना। ये कुछ भी फिर है। ये काम करेंगे। आप करेंगे? ओहो, मोहित, एक पहले इसको लाइन पे इसको रिफ्रेश कर दो जरा, इधर आओ। Good afternoon, everyone. So, on behalf of Admission Branch, University of Delhi, I welcome you all to another webinar on the second phase of CSAS. So, as most of you must be knowing that we have already launched our phase 2 of CSAS application form, and we have been receiving a lot of queries that how we have to fill up the form, how we can make our preference list. So, we thought to facilitate the process, we'll organize another webinar in which we are going to explain each and everything. So before we start the webinar, I would like to welcome the Dean Admissions. Welcome, ma'am.
And I would request ma'am to briefly apprise the prospective candidates and also give a demonstration of the portal so that the process of filling up of references and other details in phase 2 can be facilitated. So I would request ma'am to please begin the webinar. Thank you. Warm welcome to everybody who has joined here today in this webinar. We are glad to have all the prospective parents and the students here. So a very warm welcome to all the parents and students who have joined with us. हमें मालूम है CUET के एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है, आपके पास स्कोर कार्ड भी होगा, आपके पास आपके मार्क्स दिख रहे हैं और अब आप बहुत ही बेसब्री से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स का वेट कर रहे हैं. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी हैड अनाउंस्ड CSAS 1 लॉन्ग टाइम बैक, जब हमारे पास जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते थे. कल शाम को हमने हमारा फेज 2 जो है वो लॉन्च किया है. फेज 2 विच मीन्स यू हैव टू गिव योर प्रेफरेंसेस. दिस स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर टेकिंग एडमिशंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. This stage is very, very important to come to Delhi University. So in this webinar, we are going to share with you how you should fill your preferences, what are the things that you should keep in mind, what are the things that will help you to take admission in Delhi University, how you should fill your preferences, things that you should be careful of. आपको आगे admission के लिए पूरा process क्या होगा और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में admissions लेने के लिए किन किन aspects का आपको ध्यान भी रखना है. हमने एक करेक्शन विंडो भी खोली थी, उसके बारे में भी हम आपको इस वेबिनार के थ्रू बताएंगे. And if you missed the webinar, we request you, this would be live on our YouTube channel, UNIV of Delhi. You can re-look at this webinar. You can again rewind and see what you've missed. But we'll take the question answers also in this webinar. And जिन बच्चों ने नहीं अभी तक पोर्टल पे रजिस्टर किया है वो कर लीजिए और आप अपने क्वेश्चंस हमारे YouTube चैनल पे डालते रहिए. मेरी टीम पूरी मेरे साथ है जो क्वेश्चंस को लेंगे जब हम अपना बता चुके होंगे. तो कीप योर क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. डोंट रीपोस्ट द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन बिकॉज उससे हम आपके क्वेश्चंस देख नहीं पाते हैं. अगर आप क्वेश्चन को बार बार रीपोस्ट करते जाएंगे वो इतनी स्पीड में चल रहे होते हैं कि हम उन क्वेश्चंस को देख नहीं पाते. तो आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने क्वेश्चंस रखिए, डालिए और हमें टाइम दीजिए कि हम आपके क्वेश्चंस यूट्यूब से ले सके. So I think what we have to do now is we will not waste much of your time. We will straight away jump to telling you how you have to fill our common seat allocation system, which we have nomenclatured it as CSAS. How you have to fill, what are the things that you should be careful of. And let me just take you to a little tour on our CSAS platform. So students, this is the CSAS platform. आपको इसका लिंक भी दिख रहा होगा. It will start with ugadmission.uod.ac.in. अगर आपने यहाँ नहीं अभी तक अप्लाई किया है तो अप्लाई कर लीजिए. हमने एक वेबिनार पहले किया था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. आपको आपका CUET नंबर यूज करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए. तो अगर आपने फेज 1 अप्लाई नहीं किया है आप अभी कर सकते हैं. This phase is open till with this phase 2, which means when we'll end phase 2, phase 1 and phase 2 will automatically close. But मेरी request है आपसे कि आप लास्ट डेट तक का वेट मत करिए. अगर आपने फेज 1 अभी भी अप्लाई नहीं करा है तो प्लीज अप्लाई कर लीजिए. फेज 1 was a simple application जिसमें आपको आपकी डिटेल्स देनी थी. हमारे ये फॉर्म पहले ही फिल हो चुका है तो आपको दिख रहा है कि मेरा फॉर्म जो है पूरा फिल्ड है, जिसमें मैंने जो भी हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग थी वो कर ली है. आपका CUET आपका नंबर से आप जाएंगे और आप अपना नाम, आइडेंटिटी प्रूफ, मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, ईयर ऑफ पासिंग एंड क्लास 12th के सब्जेक्ट्स देते हैं.
अगर आप बीएससी ऑनर बीए ऑनर्स म्यूजिक में अप्लाई करना चाहते हैं, बीएससी फिजिकल एजुकेशन या हमारे जो परफॉर्मेंस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं आप वो बताते हैं। इसी फेज में आपने ये भी बताया होगा अगर आप ईसीए या स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो हमारे सुपर न्यूमररी कैटेगरीज हैं, अगर आपने अपना ये भरा होगा तो आप देख सकते हैं। इन केस यू हैव नॉट फिल्ड दिस प्रायर, अब आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो हमारी करेक्शन विंडो भी ऑन है जो 4 अगस्त तक ऑन रहेगी। इन केस यू मिस्ड फिलिंग एनी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ यू डन अ मिस्टेक, जो मैंने भी आपको स्क्रीन दिखाई, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपनी एक बार स्क्रीन देख लीजिए फेज 2 में आने से पहले। In case you have done any mistake here, please correct it now. But I want to tell you one thing very carefully, that if you are editing your form, if you are going for a correction window, it is a one-time facility. यानी आप एक ही बार इसको करेक्ट कर पाएंगे। आप करेक्शन कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं अभी, आप चाहे तो अपने बैंक डिटेल्स चेंज कर लीजिए, ईसीए नहीं लिया था ऐड करना चाहते हैं कर लीजिए, स्पोर्ट्स में पहले नहीं अप्लाई किया था अब करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई सर्टिफिकेट नया बन के आया है अपलोड करना चाहते हैं कर लीजिए, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट पहले आपने पुराना डाला था आपके पास नया सर्टिफिकेट बन के आ गया है आप उसको डालना चाहते हैं डाल लीजिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं बना था पहले जब आपने लॉग इन किया तो डाल लीजिए। लेकिन ये वन टाइम फैसिलिटी, यानी अगर आपको आपके पास सर्टिफिकेट नया अभी भी नहीं बना है तो अब 3 दिन है, अब बनवा लीजिए 4 अगस्त तक। लेकिन अब जब एक बार अगर आप इसको अवेल कर लेंगे इस विंडो को तो आप दोबारा अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो करेक्शन विंडो हमने 4 अगस्त तक खोली है, वन टाइम फैसिलिटी। आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव नॉट uploaded any correct certificate or you've given a incorrect information, please correct it. Once you do it for one time, you will not be able to come back at this platform again. So CSAS 1 के बाद अगर आपने कर लिया और जिनकी एप्लीकेशन ठीक है, you must now start filling your phase 2. Now this is a very very important phase. इसमें जब आप खोलेंगे तो आपको ये 4 tabs नजर आ रहे होंगे, subject mapping, program eligibility, preferences selection and preview preferences. Let me take you on a tour on each of these tabs very slowly, very significantly, and do not miss any aspect. तो जब आप subject mapping पे आएंगे, this is the most important aspect. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़े थे, हम उम्मीद करते हैं आपने सीयूईटी उन्हीं सब्जेक्ट्स में दिया होगा। आप उससे ज्यादा ले सकते थे लेकिन हमें मिनिमम वो सब्जेक्ट चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे। तो आपने क्लास 12th का ये जो डिटेल्स थी आपने हमें करेक्शन विंडो में दी थी, आपने अपने प्रोफाइल बिल्डिंग में दी थी। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत मार्क्स एंटर कर दिए तो आप फिर अभी भी हम आपके पास एक और मौका दे रहे हैं कि आप अपने इसको चेंज कर सकते हैं, क्लास 12th के मार्क्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट मैपिंग पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी क्लास 12th के सब्जेक्ट्स को एक बार दोबारा अपडेट कर पाएंगे। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बातों का जो ध्यान रखना है, थियोरी मार्क्स हमने आपसे कहा है और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपसे कहा है भरने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स है जिस मार्क्स जितने का आपका पेपर था। आपके थ्योरी मार्क्स हो सकता है 100 नंबर के थे, हो सकता है 80 नंबर के थे, तो मैक्सिमम में आपको वो नंबर डालना है जितने का आपका थ्योरी पेपर था। मार्क्स ऑब्टेन जो आपके मार्क्स आए हैं आप वो डालेंगे। प्रैक्टिकल हो सकता है आपका 20 मार्क्स का हो या 0 मार्क्स का हो, तो मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट था उसके मार्क्स आप डालेंगे और फिर आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिले आप वो डालेंगे। आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन अगर हमें ठीक देंगे तो टोटल मार्क्स और परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये हमने डमी एंट्री की हुई है जिसमें हमने मैक्सिमम मार्क्स 100 रखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अप्लाइड मैथ्स में 90 थे, इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं था, तो आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स में 100 और 90 आ रहा है और परसेंटेज भी 90% है। दूसरा सब्जेक्ट हिंदी कोर था जिसमें हमने डमी एंट्रीज की हुई हैं और आपको दिख रही हैं। अकाउंटेंसी था, इसमें 100 थे थियोरी मार्क्स और प्रैक्टिकल कुछ नहीं था, तो 89 ही रह गए 100 में से। इकोनॉमिक्स देखिए हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें आपके पास थियोरी जो थी मैक्सिमम जो थियोरी थी वो 70 मार्क्स की थी और 30 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकम का कंपोनेंट था। तो मेरे थियोरी में इस बच्चे के मार्क्स आए 65,
और प्रैक्टिकम में उसको 30 से 30 मिले, तो टोटल 100 में से उसकी 95% कन्वर्ट हो गई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, ये आगे जाके टाई ब्रेकिंग में यूज हो सकता है। इसलिए आपके लिए ठीक मार्क्स भरना, करेक्ट मार्क्स भरना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ गलती करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। वी आर अगेन रिपीटिंग, गिव अस द करेक्ट इंफॉर्मेशन, only the correct information. If you give us any wrong information, if you give us any false information, invalid information, there are very likelihood chances that your application will get rejected. So please be very careful. आपने जो क्लास 12 में आपके मार्क्स आए हैं, आप उन्हें ही यहाँ पर एंटर करेंगे, टोटल मार्क्स में, प्रैक्टिकल मार्क्स में और टोटल में। अगर आपका प्रैक्टिकल की जगह इंटरनल असेसमेंट था तो उसको आप प्रैक्टिकल का पार्ट बना लीजिए, लेकिन मार्क्स यहाँ पर हमें बिल्कुल सही दीजिए, यहाँ आप मिस्टेक मत करिए बिल्कुल भी। और बिकॉज दिस विल बी लेटर मे गेट यूज्ड फॉर डूइंग अदर थिंग्स। इसके बाद जब आप आएंगे तो नीचे आपके पास आएगा अपडेट मैपिंग। अच्छा, अगर आपने फिर भी गलती कर दी, मान लीजिए आप गलती कर दी मार्क्स डालने में, तो हम आपको ये अपडेट क्लास 12 डिटेल्स हमेशा ऑन रख रहे हैं, इसे हम क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर आपका पेपर इवैल्यूएशन के लिए गया हुआ है, री इवैल्यूएशन के लिए गया हुआ है, इंप्रूवमेंट के लिए गया हुआ है, तो भी आप ठीक कर लीजिए, लेकिन ये विंडो जो है सिर्फ आपके पास 7 अगस्त तक है। हमें उम्मीद है आपके पास री इवैल्यूएशन या इंप्रूवमेंट के रिजल्ट्स भी 7 अगस्त तक आ जाएंगे। अगर तब भी आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं तो आप यहाँ पर आके अपडेट करके अपने मार्क्स दोबारा डाल सकते हैं, सब्जेक्ट दोबारा डाल सकते हैं और मार्क्स अपने दोबारा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने अपडेट दबाया मेरे पिछले मार्क्स चले गए, तो आई विल हैव टू अगेन री एंटर एवरीथिंग। सो फॉर एग्जांपल, दीज वर माय मार्क्स, लेट्स से इन इंग्लिश, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स में मेरे मार्क्स, अब मैं चेंज करना चाहती हूँ, मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स में मेरे इतने नहीं थे, 78 थे, मैंने चेंज कर दिया। फिर मेरे अकाउंटेंसी के मार्क्स 100 में से 90 थे, वो मेरी ठीक इंफॉर्मेशन थी। हिंदी में मेरे मार्क्स थे, हिंदी को ये पेपर मान लीजिए मेरा 70 नंबर का था, और 70 में से मेरे पास 67 आए। प्रैक्टिकल नहीं था, तो ये 70 में से ही कैलकुलेट कर लेंगे। हमने फिजिक्स में पेपर दिया, या मैथ्स ले लेते हैं, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स में जितने आपके अंक थे वो आ गए, और एक मैं ले लेती हूँ फिजिकल एजुकेशन, और ये मैंने मार्क्स सबमिट कर दिए। देखिए, अब जैसे ही आपने सबमिट किए उसी ऑर्डर में हमने आपके प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करके सब्जेक्ट परसेंटेज दिखा दिए। तो इकोनॉमिक्स में मेरे मार्क्स चेंज हो गया, मेरे 78% हो गए, अकाउंटेंसी में 90, हिंदी कोर जो मैंने चूज किया था उसमें 95.71, क्योंकि ये पेपर में मैंने प्रैक्टिकम नहीं डाला, सिर्फ थियोरी में 70 नंबर थे, 70 की ही थियोरी थी, यानी इसमें 100 नंबर का पेपर नहीं था, तो अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट परसेंटेज आ गई। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ पेंट को बहुत ध्यान से भरें। जैसे ही आप ये कर लेंगे, इसके बाद आपके पास आप होम पर जाकर, जब आपने अपडेट कर लिया, यू कम बैक टू होम, अगेन कम हियर, एंड नाउ यू कैन डू योर अपडेट मैपिंग। क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हुए तो मेरी मैपिंग भी बदल गई। ये मैपिंग जो है, अगेन वी वांट टू टेल यू, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये भी आपके रिजेक्शन का पार्ट बन सकता है अगर आपने ठीक से सब्जेक्ट मैपिंग नहीं की। सब्जेक्ट मैपिंग का क्या आधार आप बनाएंगे? जो आपने सीयूईटी में सब्जेक्ट लिया था और आपने जो 12th में लिया है वो मैप होना चाहिए। कम से कम 50% सिलेबस सेम होना चाहिए, जो आपने 12th में पढ़ा है और जो आपने सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में लिया है। तो मान लीजिए आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी, तो हम उम्मीद करें आपने बायोलॉजी का पेपर लिया होगा। तो यहाँ पर आपने जो 12th के मार्क्स भरे वही मैप हो जाएंगे जो आपने भरे थे। तो हिंदी को मैं हिंदी कोर्स से मैप कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स को मैंने इकोनॉमिक्स ही पढ़ी थी उससे मैप हो गया, मैथमेटिक्स का पेपर मेरा मैथमेटिक्स से मैप हो गया, फिजिकल एजुकेशन पहले से ही मैप था। फिजिक्स देखिए, अब ये हमने जानबूझ के ऐसा लिया एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि फिजिक्स मैंने 12th में नहीं पढ़ी थी लेकिन मैंने सीयूईटी में दिया, तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा, बिकॉज मेरे 12th के सब्जेक्ट से मैप नहीं कर रहा। अब मेरे 12th के सब्जेक्ट से सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट मैप कर रहे हैं,
एक हिंदी को, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन। हो सकता है मैंने जनरल टेस्ट भी लिया होगा, अगर इस बच्चे ने अगर जनरल टेस्ट भी लिया तो जनरल टेस्ट को मैप करने की कोई जरूरत नहीं है उसका, क्योंकि मैपिंग हो नहीं सकती। इसके बाद करेक्ट मैपिंग के बाद आप आएंगे अपनी डिक्लेरेशन। ये हम सिर्फ आपको ये अगेन बताने के लिए कि आपने सब काम ठीक किए हैं, चेक्स हैं कि आप देख लीजिए। आई डिक्लेयर दैट आई हैव डन द करेक्ट क्लास 12 सब्जेक्ट मैपिंग विद द CUET पेपर। यू आर ensuring you are confirming that you have verified everything। आप हमें बता रहे हैं कि आपने सब चेक कर लिया है। आप ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी आपने पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब ठीक है और वैलिड है और कोई भी आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। ये आपकी तरफ से एक अंडरटेकिंग आ रही है हमारी तरफ। आप ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि आपने मार्क्स ठीक से एंटर किए हैं, जो क्लास 12 के मार्क्स है जो आपके बोर्ड्स में आए वो आपने ठीक से एंटर किए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप अगेन ये हमें बता रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। सो प्लीज डू दिस शीट वेरी केयरफुली। वंस यू डन दिस शीट आप सेव करके कंटिन्यू में आइए और हम फिर एक बार आपको बता देते हैं कि आपने सब ठीक किया है, चेक कर लीजिए। ये हम इतनी बार आपसे इसीलिए चेक कराते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। वंस यू डू एन ओके, अब आपकी सब्जेक्ट मैपिंग भी हो गई, ठीक से आपने सब्जेक्ट मैप भी कर लिए, 12th के सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी ठीक से डाल दिए। अब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी एलिजिबिलिटीज एक बार चेक कर लीजिए। ये जैसा कि मैं बता रही थी कि जनरल टेस्ट भी इस बच्चे ने लिया था और जनरल टेस्ट किसी से मैप नहीं होता तो हमने वो मैपिंग के लिए कहा भी नहीं। अब ये अगेन हम आपको CUET के आपके मार्क्स दिखा रहे हैं, ये ऑटो इंटीग्रेटेड है हमारे पास थ्रू API, हमारे पास ऑटो इंटीग्रेटेड आए हुए हैं NTA के द्वारा। ये आपके सही मार्क्स होंगे जो आपको प्राप्त हुए होंगे CUET में। अब इन मार्क्स के आधार पर और जो आपने मैपिंग की है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल और वहां आपके कितने मार्क्स बनते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपने मैथ्स लिया हुआ था और आप एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं कि BSc प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंसेस के लिए हमारी एलिजिबिलिटी थी एक भाषा, मैथमेटिक्स, गणित और कोई भी दो सब्जेक्ट्स। क्योंकि आप इस एलिजिबिलिटी को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करते हैं तो आपके मार्क्स भी हम दिखा रहे हैं। जो मार्क्स आपके बनेंगे मैथमेटिक्स को लेकर, हिंदी लेकर, फिजिकल एजुकेशन को लेकर और इकोनॉमिक्स, ये आपके बेस्ट स्कोर बन रहा है। इसमें जनरल टेस्ट नहीं है एलिजिबिलिटी में तो नहीं दिख रहा है। तो इसमें आपके टोटल मार्क्स CUET के आधार पर बन रहे हैं 570। और हो सकता है बहुत सारे कार्यक्रमों में बिकॉज सेम तरह की एलिजिबिलिटी है तो सेम ही मार्क्स बन रहे होंगे। अब ये चौथा एग्जाम्पल देखिए, BSc पास होम साइंस का। यहाँ पर आपके पास हमारी दो एलिजिबिलिटीज हैं, या तो छात्र या छात्रा ने कोई एक भाषा और कोई अन्य 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे जिनमें से एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम अ लिस्ट B1, या दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है कि आपने कोई एक भाषा, कोई एक सब्जेक्ट B1 या B2 से, या जनरल टेस्ट। तो इस केस में क्या हुआ, इस बच्चे के जब हमने दोनों एलिजिबिलिटी लगाई तो एक एलिजिबिलिटी से तो 570 आ रहे थे 800 में से, और दूसरे में अलग स्कोर आ रहा था जो हिंदी, फिजिकल एजुकेशन और जनरल टेस्ट जहां उसके सबसे अच्छे मार्क्स है उसको कंसिडर करके आ रहा था। इस स्कोर को 170 प्लस 143 प्लस 174, ये आपका 650 में से बन रहा है। 200 हिंदी के, 200 फिजिकल एजुकेशन के और 250 जनरल टेस्ट के। तो 650 को फिर हम 800 पे लेकर आए और हमने कंपेयर किया। जब हम 800 पे बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 170 प्लस 143 प्लस 174 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 800, वो स्कोर बनता है 599.3846746154। और ये स्कोर आपका 570 से ज्यादा है तो यहाँ आपको बेनिफिट दिया जा रहा है सेकेंड एलिजिबिलिटी का। तो आपका हाईएस्ट स्कोर जो बन जाएगा वो प्रोरेशन करके ये बनेगा 599.3846। तो इस प्रोग्राम के लिए हम आपका बेटर स्कोर जो है, जो 3 सब्जेक्ट्स के एलिजिबिलिटी 2 के आधार पर बन रहा है, उसे हम कंसिडर करेंगे। तो इस बेसिस पे आप जितने प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है वो सब आपको दिखेंगे। अगर आपकी सब्जेक्ट मैपिंग ठीक नहीं थी तो आपको कम दिखेंगे। अगर आपने गलत सब्जेक्ट मैपिंग की तो आप यहाँ पर तो निकाल लेंगे लेकिन आगे जाके रुक जाएंगे। तो सब्जेक्ट मैपिंग जब कॉलेजेस के पास जाएगा तो वो भी चेक करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज आपकी सब्जेक्ट मैपिंग भी चेक करेगा। तो प्लीज हम आपको रिमाइंड कराते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से करिएगा और क्लास 12 के मार्क्स ठीक से डालिएगा।
इसके बाद जहां जहां आपका जिस प्रोग्राम के लिए जो स्कोर बन रहा है वो आपको दिखेगा, जहां आप नॉट एलिजिबल हैं वो नीचे आ जाएंगे। अब देखिए ये बच्चा बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए नॉट एलिजिबल है क्योंकि इसने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। आपको याद होगा हमने हिंदी भरा था। ये बच्चा इंग्लिश ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इंग्लिश उसको दिखेगा भी नहीं। ये बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इस पर फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री नहीं थी। बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए बच्चा वैलिड नहीं है। तो ये प्रोग्राम्स आपको इनवैलिड दिखाएंगे और आपकी एलिजिबिलिटी रुक जाएगी यहीं पर ही, बिकॉज आप एलिजिबल नहीं थे तो आप इन प्रोग्राम्स को आप चुन भी नहीं पाएंगे। तो ये बस आपको कंफर्म करने के लिए कि आप देख पाए आपका कहाँ क्या स्कोर बन रहा है, आप जान पाए कि आपको कैसे प्रोरेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रेफरेंस फिलिंग की। प्रेफरेंस फिलिंग में आप सबसे ऊपर एक फिल्टर है। अब जिन प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल थे सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को आप प्रेफरेंस फिलिंग में देख पाएंगे, जहां आप एलिजिबल नहीं थे वो आप चुन भी नहीं पाएंगे, उनका आप चुनाव भी नहीं कर पाएंगे। सभी कॉलेजेस जहां जहां वो प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं वो भी आपको दिखेंगे, और आपको क्या करना है बस यहाँ से अपनी प्रेफरेंस ठीक बनानी है। सो फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स लेना चाहते हैं तो आप बीकॉम ऑनर्स चुन लीजिए। जैसे ही आप बीकॉम ऑनर्स लेंगे तो नीचे आप देखेंगे ये जो दिख रहा है अवेलेबल प्रेफरेंसेस 1301, ये जहां जहां सॉरी हमने लिया, हाँ फिल्टर लगा लेते हैं जी, सॉरी मैं फिल्टर लगाना भूल गई थी। जैसे आप फिल्टर लगाएंगे तो बीकॉम ऑनर्स जिस कॉलेज में 55 कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, 55 कॉलेजेस आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं और बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं। तो मान लीजिए आप सबसे पहले अदिति महाविद्यालय को लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐड टू टॉप कर सकते हैं अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स इन अदिति महाविद्यालय है। जैसे ही आप ये चुनेंगे आपकी राइट साइड में वो आपका प्रेफरेंस नंबर 1 बन जाएगा, जो अभी आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये आपका प्रेफरेंस नंबर 1 बन गया, नंबर ऑफ प्रेफरेंस 1, और आपने इसे डाल दिया बीकॉम ऑनर्स को अदिति महाविद्यालय। अब आप मान लीजिए दीनदयाल कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं और आपने इसे अगेन प्रेफरेंस में डाल दिया। जैसे ही मैंने ऐड टू टॉप किया, पंडित दीनदयाल कॉलेज जो है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट प्रेफरेंस बन गया और अदिति महाविद्यालय बीकॉम ऑनर्स मेरा सेकंड प्रेफरेंस हो गया। अगर आप चेंज करना चाहें तो राइट साइड से आप चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइए दोबारा से, और अब फिर अदिति महाविद्यालय 1 हो गया और दीनदयाल उपाध्याय सेकंड हो गया। इसी प्रकार अगर आप चाहें तो मान लीजिए इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए अब आपको लग रहा है कि ये आपकी प्रेफरेंस 2 थी तो आप इसे प्रेफरेंस 2 पे डाल दीजिए, आप ओके कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि अदिति महाविद्यालय आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही रही, इंद्रप्रस्थ कॉलेज क्योंकि आपने कहा आपको सेकंड पे वो डालना है तो वो सेकंड आ गई, और दीनदयाल उपाध्याय नीचे चला गया, 3 पे चला गया। तो ये जो 3 बटन आपके पास लेफ्ट में दिए गए हैं आप इनसे अपना ऑर्डर कर सकते हैं, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, या किसी पर्टिकुलर प्रेफरेंस नंबर पे भी आप उस प्रोग्राम को कॉलेज को डाल सकते हैं। अब ये प्रोग्राम और कॉलेज पूरी एक एंटिटी बन जाती है और यही आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर है। तो अदिति महाविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, बीकॉम ऑनर्स इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपका सेकंड प्रेफरेंस है, बीकॉम ऑनर्स दीनदयाल उपाध्याय में आपका थर्ड प्रेफरेंस है। मान लीजिए अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉलेज पहले लेना है, यानी आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले कालिंदी कॉलेज के सारे प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, तो आप फिर फिल्टर में ऊपर वापस जा सकते हैं, कालिंदी कॉलेज को चुनिए, अप्लाई फिल्टर करिए। अब क्या होगा आपको सिर्फ कालिंदी कॉलेज में जो प्रोग्राम्स है वो दिखेंगे। देख रहे हैं आप, सिर्फ कॉलेज से ये फिल्टर हो गए, यानी कालिंदी कॉलेज में 36 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, बीए प्रोग्राम, बीए एंटरप्रेन्योरशिप, बीए प्रोग्राम ज्योग्राफी, ये सब कॉम्बिनेशंस, और बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ये सब आपके कालिंदी कॉलेज के आ गए। अब आपको लग रहा है कि आपको बीए ऑनर्स कालिंदी कॉलेज प्रेफरेंस रखना है और इसे अब आप टॉप पे लेकर जाना चाहते हैं। सबसे पहले आप चाहते हैं कालिंदी कॉलेज आपके घर के पास है और इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इसको ऐड टू टॉप कर सकते हैं। देखिए अब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट फिर चेंज हो गई, कालिंदी कॉलेज में बीए ऑनर्स हिस्ट्री आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई, अदिति सेकंड हो गई, इंद्रप्रस्थ थर्ड हो गई, और सिमिलरली बाकी प्रेफरेंसेस नीचे चेंज हो गई। सो दिस इज अनदर वे कि आप कॉलेज से चाहे तो कॉलेज से फिल्टर कर लीजिए, प्रोग्राम से चाहे प्रोग्राम से फिल्टर कर लीजिए, कॉलेज और प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन करना चाहे तो वो कर लीजिए। बस जो राइट साइड में है
ये अब आप इस बच्चे ने 4 प्रेफरेंसेस हमने फिल कर ली है जो मेरी इस ऑर्डर में है। बीए ऑनर्स कालिंदी कॉलेज सबसे पहले फर्स्ट है, बीए और बीकॉम ऑनर्स अदिति सेकंड, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में बीकॉम मेरा थर्ड प्रेफरेंस है और बीकॉम ऑनर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेरा सेकंड फोर्थ प्रेफरेंस है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे बीए ऑनर्स संस्कृत जो है कालिंदी कॉलेज में एड टू बॉटम करना है, तो मैंने सबसे नीचे उसे भी डाल दिया, तो वो मेरी 5वीं प्रेफरेंस होगी। तो इस प्रकार आप कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंसेस से अपनी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं और वो राइट साइड में आपको दिखती चली जाएगी। किसी भी टाइम आप चाहें तो आप प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंसेस करके, सॉरी पहले इसको सेव कर लीजिएगा। ये मुझे बता रहा है कि आपने सेव नहीं की, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि आप यहाँ जाए तो मेरी 0 प्रेफरेंसेस हो जाएंगी। देखिए अगर आपको सेव करना बहुत जरूरी है, ये मुझे पहले ही कह रहे हैं कि आप सेव करिए, क्योंकि मैंने सेव नहीं करा था तो मैं ऊपर जाऊंगी और ये सेव चेंजेस मेरे प्रेफरेंसेस, अब मेरी यहाँ आपको दिख रहा है सेव्ड प्रेफरेंसेस 5, ये आपकी 5 प्रेफरेंसेस सेव हो गई है। अब आप प्रीव्यू प्रेफरेंस पे जाएंगे तो आपको ये 5 प्रेफरेंसेस दिखेंगी। सबमिट कर दीजिए प्रेफरेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है, 5 में भी आप सबमिट कर सकते हैं और दोबारा भी आप आ सकते हैं। हम ये सबमिट का बटन तब तक ओपन रखेंगे जब तक आपका फेज 2 चल रहा है। सबमिट का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आप चेंजेस कभी भी कर सकते हैं। ये ऑटो लॉक हो जाएंगी 9 अगस्त को। 9 अगस्त के तक आपने जो भी चेंजेस किए आप करते रहिए, क्योंकि हमें मालूम है आपको कुछ दिन चाहिए है। आप किसी से बात करेंगे, वो कहेगा इसे ऊपर डाल दिया, इसे नीचे डाल दिया, बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो सबमिट करने में घबराइए नहीं, आप दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं। आप दोबारा स्टार्ट में जाएंगे, वहीं से आप दोबारा एलिजिबिलिटी देखकर प्रोसीड टू प्रेफरेंसेस में आकर, देखिए मेरी जो प्रोसीड टू प्रेफरेंसेस में आके आप दोबारा से चेंज करके ला सकते हैं। आपकी पुरानी प्रेफरेंसेस वही रहेंगी। सेव प्रेफरेंसेस मेरी 5 थी, 5 की 5 अभी भी हैं और आप दोबारा इनको चेंज कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको यूज करना है प्रेफरेंसेस भरने के लिए। Another thing that we want to tell all our students जो बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आप बीए प्रोग्राम चुन रहे हैं तो जरूरी है कि आपने क्लास 12th में मैथ्स पढ़ी हो। मतलब क्लास 12th तक में आपकी मैथ्स की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम में कर नहीं पाएंगे। तो आप मैथ्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस के अगर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करें तो आपने ये क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप कोई लैंग्वेज के साथ बीए प्रोग्राम ले लें, मान लीजिए आप अरबिक के साथ बीए प्रोग्राम चुन रहे हैं, आप तमिल के साथ बीए प्रोग्राम चुन रहे हैं, तेलुगु ले रहे हैं, पर्शियन ले रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास वो लैंग्वेज की कुछ वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप 12th के बाद उसको परस्यू करना चाह रहे हो उस लैंग्वेज को, तो आपने वो लैंग्वेज पढ़ी हो, आपको उस लैंग्वेज के बारे में कुछ जानकारी हो, ताकि आप आगे उस कोर्स को परस्यू कर सके। अगर आपके पास उस लैंग्वेज की जानकारी नहीं होगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये कॉलेजेस आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। इनफैक्ट रिजेक्शन की तो बात ही नहीं है। अगर आपने पढ़ी नहीं तो आप उसको आगे पढ़ेंगे भी कैसे? हम आपको अक्षरों के ज्ञान से तो शुरू नहीं कर सकते ना ग्रेजुएशन के लेवल पे। तो ये आप सबके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बीए कॉम्बिनेशन ऐसे ले रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जरूरी हो या लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ ऐसा ले रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज या मैथमेटिक्स जो है उसकी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इनफैक्ट ये आपके पसंदीदा सब्जेक्ट भी होने चाहिए। कुछ चीजें जो ध्यान देने के लिए प्रेफरेंसेस में है कि प्रेफरेंस शीट अच्छी और लंबी और बड़ी बनाइए। हमें नहीं पता आपके मार्क्स कितने हैं, आपको नहीं पता बाकी स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, तो जहां जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां उन प्रेफरेंसेस को जरूर भरिए, क्योंकि ये प्रेफरेंसेस में आप ऐड या डिलीट नहीं कर पाएंगे बाद में कभी भी। ऊपर नीचे तो हो जाएगा जो हमारे रूल्स के आधार पर, जो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन आप ऐड और डिलीट नहीं कर पाएंगे। जो प्रेफरेंस आपने दे दी वो वहीं की वहीं रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि अरे जी अब तो मैं ये कोर्स नहीं करना चाहता था, मैंने डाल दिया मेरी प्रेफरेंस शीट में, तो माफी चाहेंगे, हम उसको बदल नहीं पाएंगे। इसी प्रकार अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं और आप भूल गए किसी कॉलेज में वो कोर्स डालना, तो हम उसके प्रिविलेज खोल नहीं पाएंगे कि आप उसको चेंज कर पाए। ऐसा हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। और वैसे भी एडमिशन अब हमें जल्दी करने हैं, अभी आपके पास है 7 दिन 8 दिन है, आप आराम से तसल्ली से अपनी प्रेफरेंसेस चुन लीजिए और उनको क्रमबद्ध कर लीजिए जिस ऑर्डर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत कम भी मत रखिएगा, क्योंकि उससे फिर आपके पास चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। बहुत ज्यादा या वो प्रोग्राम मत भरिएगा जिनमें आप नहीं करना चाहते, जो आपको लगता है पढ़ नहीं पाएंगे, तो उन्हें मत
चुनिएगा, उनका चुनाव मत करिएगा, क्योंकि अगर मिल गया तो आपको उसको परस्यू करना पड़ेगा। ये प्रेफरेंसेस इसलिए भी जरूरी है कि जब हम हमें एलोकेशन करेंगे तो हम इन प्रेफरेंसेस और आपके मार्क्स के आधार पर करेंगे। अगर आपके मार्क्स मेरिट में आते हैं तो आपको जो मिलेगा फर्स्ट लिस्ट में, जो हमारी 16 अगस्त को आएगी, उसमें अगर आपको जो भी प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन आपको अलॉट होगा, आपको वो लेना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपने वो प्रेफरेंस शीट में भरा और आपको मिल गया फर्स्ट राउंड में, लेकिन अभी आपको लग रहा है अरे जी मैंने तो ऐसे ही भर दिया था, मैं अगले लिस्ट का वेट करता हूँ तो मुझे इससे बेटर मिल जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है, इनफैक्ट ये होगा भी नहीं। ये तभी होगा अगर आपने अपनी पहली एलोकेशन एक्सेप्ट की होगी, जो आपकी प्रेफरेंस में होगा। मान लीजिए आपको 50th चॉइस मिल गई, तो आप 50th चॉइस एक्सेप्ट कर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए, और फिर आपको हम एक अपग्रेड का प्रोविजन देंगे, आप उसमें अपग्रेड कर लीजिए। अपग्रेड करके फिर जहां सीट खाली होगी नेक्स्ट राउंड में हम आपको ले जाएंगे। सीट खाली हो, आपकी मेरिट में आ रहा होगा तो ले जाएंगे, अगर सीट खाली होगी तो, और अगर आप मेरिट में आ रहे होंगे तो। अगर आप नहीं आ रहे होंगे तो आपका अपग्रेडेड सीट जरूरी नहीं है कि अपग्रेड होगी। ये एक आप काम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम आपको उस समय एक और चांस देते हैं कि आपने अगर शेड्यूल देखा होगा जो हमारी वेबसाइट पे है, अगर आपको 50th प्रेफरेंस मिली है तो आप पहले की 49 प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर भी कर पाएंगे। यानी पहली 49 प्रेफरेंस, आपको लग रहा है जी मैं ये प्रोग्राम नीचे ले जाता हूँ, वो प्रोग्राम ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि हम आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखाएंगे, तो हो सकता है आप तब चेंज करना चाहें। तो 50 के ऊपर की प्रेफरेंसेस हम आपको चेंज करने का मौका देंगे, 50 के नीचे की प्रेफरेंसेस फिर आपको नहीं दिखेंगी। सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, आप ऐड या डिलीट तब भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने बीच में कह रहे 49 प्रेफरेंस आप कहे कि मुझे डिलीट करने दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। पूरा एडमिशन सिर्फ आपकी चॉइस के ऊपर बेस्ड है। आप तय करेंगे कि आपको क्या प्रेफरेंसेस देनी है, आप तय करेंगे आपको किस कॉलेज में जाना है। आप हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे, सब्जेक्ट मैपिंग भी आप कर रहे हैं, टाई ब्रेकिंग भी हम आपके ही क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के आधार पर करेंगे। I'm requesting all the parents, all the students who have joined with us today, that please be very careful that you give us correct information in CSAS phase 2. In fact, in phase 1 also, but 2 is a very, very important step in giving you an allocated seat and also for rejections. We don't want any application to get rejected. We don't want कि आपका admission ना हो। हम चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पूरा मौका मिले। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस, मार्क्स, मैपिंग ठीक करें। And now we will take some question answers also. With me, I'm joined with again with Dr. Anand Sonkar. We will take up your questions. We have been getting many questions on us on the YouTube. और हमारे पास बाकी भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमारे पास हमारे हेल्प डेस्क, ईमेल आईडीज और चैटबॉट पे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल से ही आने शुरू हो गए थे। एक एक करके लेते हैं, और अगर नहीं एड्रेस हो पाए आपके क्वेश्चन तो हम एक वेबिनार और करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट। नहीं अनिता, वो हमें ईमेल पर लिख सकते हैं UG@admission। सर आज नहीं ले। हाँ, अगर हम आपके आज नहीं ले पाए तो सर आप बता दीजिए ईमेल आईडी। So I think many students have been writing to us. We'll try to take as many as questions we can. But if we are not able to address, you can still write it to us at ug@admission.du.ac.in. There is a chatbot service also available on the homepage of Delhi University. From there also you can ask. But that will be available only during the office hours and working hours. So now I would like to request Dr. Satnam Singh to take up the questions, please. So good afternoon, students and students, parents, everyone. Sir, we have received a lot of questions in our chatbot as well, and every day on our mail and phone calls, बच्चों को कई confusions होती है, कई doubts होते हैं, तो हमने कुछ questions में से shortlist किए हैं और मैं one by one आपसे कुछ questions पूछ रहा हूँ जो student हमसे पूछते हैं, कुछ का हम reply करते भी रहते हैं साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा पूछता है, सर मेरा जीटी में स्कोर बहुत कम है, तो क्या मैं जीटी को हटा दूं, उसे एंटर ही ना करूं, जीटी के बिना अपना फॉर्म फिल कर दूं? नहीं, वो आपके पास जैसे आपने अभी हमें देखा होगा, जीटी का स्कोर तो हमने ले ही लिया है। अगर आपके स्कोर्स में ठीक नहीं थे या अच्छे नहीं थे तो वो कंसिडर ही नहीं होंगे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में। इन एनी केस हम आपका बेस्ट स्कोर लेते हैं, तो जहां जीटी और उसका कॉम्बिनेशन है वो ऑटोमेटिकली आपका हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं।
आप उस पे चॉइस नहीं कर पाएंगे कि जीटी का आप मार्क्स ना एंटर करें, बिकॉज वो तो ऑटो इंटीग्रेटेड है। अगर नहीं जरूरत होगी तो आपका वो नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हैं जो जीटी पे बेस्ड है, जैसे हिंदी पत्रकारिता, हिंदी और जनरल टेस्ट, तो वहां आपका वो कंसिडर किया ही जाएगा और सभी का किया जाएगा। आप उसमें प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे, वो आपके ऊपर। तो आई मतलब थिंक अच्छे आपके का बेकार स्कोर के बारे में बच्चों को सोचना नहीं चाहिए, जो भी आ गया वो डाल दें। हाँ, क्योंकि हम हाँ, आपका बेस्ट ले रहे हैं। ओके, सो जब हम अपने सीबीएसई के स्कोर या फिर अदर बोर्ड्स के 12th के बोर्ड्स के स्कोर अपडेट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्या वो 7 सब्जेक्ट फिल करना मैंडेटरी है या हम 7 से कम भी कर सकते हैं? नहीं, अभी आपको प्रोफेसर गांधी ने पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, उसमें भी आई थिंक बच्चों ने देखा होगा। मैंडेटरी नहीं है, अप टू 7 आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी 5 ही है। 5 डालना जरूरी है। एक्चुअली आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जरूर डालने हैं जो आपने सीयूईटी में दिए हैं, सब्जेक्ट मैपिंग में उनका डालना बहुत जरूरी है, वो जरूर डालिए जो। और सीयूईटी में 6 सब्जेक्ट्स अलाउड थे, तो अगर आपके पास 6 है एक्सक्लूडिंग जनरल टेस्ट, आप उन 6 की 6 की मैपिंग कर लीजिए, बिकॉज वही जो मैप करेंगे फिर हमारे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में हम उसको यूज करेंगे। तो अगर आप 5 डालेंगे हम 5 से मैपिंग करेंगे, अगर आप 4 डालेंगे हम 4 से करेंगे, अगर आप 2 डालेंगे तो आप सभी प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप अपनी सही मैपिंग करिए और सही से स्कोर डालिए। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने फेज 1 में अपनी डीजी लॉकर की मार्कशीट या फिर जो पोर्टल पे मार्कशीट आती है वो अपलोड की थी। अब वो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम करेक्शन विंडो में या फेज 2 में क्या अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करें, और अगर हम नहीं कर पाए, हमने पहले ही सबमिट कर दिया है, तो अब हम क्या करें? क्या हमारी वो डीजी लॉकर वाली मार्कशीट और सीबीएसई का जो स्क्रीनशॉट है, क्या उसी से हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा? देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या स्क्रीनशॉट भी अपलोड किए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है मार्कशीट, आप चेंज कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। और एलोकेशन के बाद अगर कॉलेज क्वेरी रेज करता है तो आप उस समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उन्हें भेज दें। इसी ये कर तरह देंगे तो अच्छा है। इन एनी अभी केस, कर दें तो इन एनी अच्छा केस है। हम आपका डिजी लॉकर से सीबीएसई की तो मार्कशीट हमारे पास इन एनी केस डिजी लॉकर से आ ही जाती है, तो वो मार्कशीट तो हमारे पास आ ही जाएगी। अगर आप कर सकते हैं तो आप चेंज कर लीजिए। ओके, अगर किसी से बाय मिस्टेक 12th की जगह 10th की मार्कशीट आ गई है, 10th की जगह 12th की मार्कशीट आ गई है, और वो अपने करेक्शन विंडो का चांस भी एक बार कर चुके हैं अप्लाई, अब उनके बाद दोबारा चांस नहीं है, तो अब ऐसे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा फॉर्म? देखिए, वैसे तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप करेक्शन विंडो में जा रहे हैं तो तब तो ध्यान रखिए, एक बार गलती कर चुके हैं दोबारा गलती कर रहे हैं, ऐसे मत करिए। आप अपने पास पूरे सर्टिफिकेट्स को टैग करके रखिए ताकि आप गलत अपलोड ना करें। पर फिर भी हमारे कॉलेजेस और टीचर्स जो हैं बहुत ही केयरफुली करते Considerate हैं, also, दे वेरी very considerate, कंसिडरेट। वो अगर आपने 10th 12th में डाल दिया होगा वो एक बार चेक कर लेंगे। और हम एक काम और भी करते हैं, रेज द क्वेरी का। तो जब आपका एलोकेशन आता है तो हम कॉलेजेस और आपके बीच में एक थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट भी ओपन रखते हैं रेज द क्वेरी का, कि तब भी वो आपसे आपके सर्टिफिकेट्स मांग सकते हैं, अगर उन्हें डाउट होगा तो वो तब भी आपसे सर्टिफिकेट। कुछ बोर्ड्स के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं। अब वो जब मैपिंग करने आ रहे हैं तो उनको मैपिंग करते हुए कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उनके केस में कैसे उनको बच्चों को कैसे प्रोसीड करना है? देखिए, मैपिंग अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव पढ़ा है 12th में, तो आपने सीयूईटी का पेपर तो हिंदी में ही दिया होगा। आप हिंदी कोर से जिसमें आपके बेटर स्कोर है उससे आप मैप कर लीजिए ताकि टाइम ब्रेकिंग में आपको फायदा हो जाए। तो आपने हिंदी तो सीयूईटी में दिया ही होगा, अब हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव में से जिसके आपके बेटर मार्क्स है उनसे आप मैप कर लीजिए। ओके, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एक साल में एक बोर्ड से क्वालिफाई कर दिया, देन फिर दूसरे बोर्ड से और पेपर दे दिए, जैसे इग्नू से या एनआईओएस से। अब उनके 2 बोर्ड्स हैं तो उनके पास 2 मार्कशीट हैं, तो उनको कंफ्यूजन है हम कौन सी वाली मार्कशीट अपलोड करें या कौन से वाला रोल नंबर एंटर करें पोर्टल पे। तो उस केस में क्या करना चाहिए उनको? आप दोनों मार्कशीट्स को इकट्ठा रखिए और उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, दोनों मार्कशीट। बिकॉज अब क्योंकि आप चाहते हैं कि हम दोनों को कंसिडर करें और आपको उसमें देखें, तो आप दोनों को इकट्ठा रखिए, स्कैन करिए और अपलोड कर लीजिए। हमें आपकी चेकिंग के लिए दोनों ही चाहिए होंगे। आप एक से अगर भेजेंगे तो हम एक से चेक करेंगे, आप 2 भेजेंगे तो हम 2 से चेक करेंगे। जो आप डिटेल्स डालने की बात कर रहे हैं वो उस मार्कशीट की डाल सकते हैं जिसमें मैक्सिमम पेपर बच्चा ले रहा है। अगर 4 पेपर एक बोर्ड की ले रहा है और एक की डिटेल्स भरने में शायद एक ही कॉलम है, तो वहां पे उस बोर्ड का नाम लिख दें जिसके ज्यादा पेपर्स है,
और रोल नंबर वहां का डाल दें। एक क्वेश्चन है, वो कुछ टेक्निकलिटीज जानना चाहता है बच्चा कि ये जो हमारी एलोकेशन एल्गोरिदम है, हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स। कि जैसे कई लोग उनको बच्चों को होता है कि मैं अगर प्रेफरेंस, मेरा साथी है, मेरा फ्रेंड है, उसने प्रेफरेंस वैसे बनाई, मैंने प्रेफरेंस अलग तरीके से बनाई, और उसको कॉलेज मिल जाएगा, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। क्या ऐसा भी कुछ है कि कम स्कोर वाले को ऐसे ज्यादा अच्छा मिल जाए? हाउ नहीं, दिस एल्गोरिदम वर्क्स? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हम कर भी नहीं सकते इस तरह से। आपका एलोकेशन जो होगा आपकी प्रेफरेंस के आधार पर होगा और आपकी मेरिट के आधार। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेरिट ज्यादा थी और आपको नहीं मिला। तो वो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और ऐसा हमारे पास कभी कोई ग्रीवांस भी नहीं आया। अगर आपकी मेरिट ज्यादा है और आपने प्रेफरेंसेस ठीक से भरी है, ऑब्वियसली यू विल गेट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक चीज को कंसिडर करते हैं। हम पूरा देखते हैं कि जस्टिस पूरा हो सभी बच्चों को। एल्गोरिथम वर्क्स लाइक दैट। मुझे लगता है एल्गोरिथम समझाना तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, हाँ। पर ये समझना चाहिए बच्चे को कि आप अपनी प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दें। आप स्कोर को तरफ ना देखें कि मेरा स्कोर कम है या ज्यादा है। आप अपनी प्रेफरेंस ऊपर रखें। आपको जो प्रोग्राम जिस कॉलेज में पढ़ना है आप उसको सबसे ऊपर रखें, और उसके बाद दूसरे को रखें, तीसरे को रखें। स्कोर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज एलोकेट होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मैं इसको अपनी प्रेफरेंस शीट से हटा दूं, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आपको पता नहीं उस कॉलेज में स्कोर कितना जाएगा, आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में स्कोर कितना जाएगा। आपको हमेशा अपनी डिजायर फॉलो करनी है। जो प्रोग्राम आपको पढ़ना है आप उसको नंबर 1 पे रखिए, जिस कॉलेज में आप सबसे पहले जाना चाहते हैं, और आप अपनी एक एक्सटेंडेड लिस्ट बनाएं। आई थिंक एल्गोरिथम समझने से ये शायद सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम, बट प्रेफरेंस आप अपनी ध्यान रखें। मतलब जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं मेरा स्कोर तो कम है, अब मैं ये हम्म। बेस्ट कॉलेज को ऊपर ना रखूं क्योंकि मेरा स्कोर कम है। तो वो कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। आप अपनी प्रेफरेंस, अपने स्कोर को ध्यान मत रखिए, क्योंकि स्कोर ज्यादा ज्यादा और कम हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो जब सभी एग्जैक्टली। के स्कोर के हिसाब से ज्यादा कम डिसाइड होगा। तो अपनी क्योंकि हमें अभी प्रेफरेंसेस। पता ही नहीं है किस कॉलेज में किस प्रोग्राम में कितने बच्चे एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे, तो ये तो ऑल पूरा बहुत ही डायनेमिक है डेटा। तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अपनी प्रेफरेंस को ध्यान में रखें। ओके, ओके। और एक, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये जो, अगर मैंने सुपर न्यूमरी में अप्लाई किया है स्पोर्ट्स में या ईसीए में, तो क्या मुझे सुपर न्यूमरी में ही सीट मिलेगी? क्या मुझे अनरिजर्व या विदाउट जो सुपर न्यूमरी जो जर्नल सीट्स हैं, क्या मुझे वो सीट्स नहीं मिलेंगी? ये कैसे वर्क करेगा? हमारे देखिए, रेगुलर लिस्ट भी निकलती है और सुपर न्यूमरी। अभी हमने सुपर न्यूमरी का शेड्यूल दिया नहीं है। वो हमारी थर्ड लिस्ट के साथ शुरू होती है। बिकॉज जितने भी हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, ईसीए है, ट्रायल्स है, सीडब्ल्यू की लिस्ट है, पीडब्ल्यू की, केएम, ये जो हमारी कैटेगरीज है, इनकी लिस्ट हम थर्ड लिस्ट के साथ निकालते हैं। और जब आपके पास थर्ड लिस्ट शुरू होगी तो आपके पास, अगर आपने मान लीजिए ईसीए में किया है, तब तक आपके ट्रायल्स हो जाएंगे, सर्टिफिकेट चेक हो जाएंगे, आपका उसका मेरिट बन जाएगा। तो हम आपके पास रेगुलर राउंड की आपकी एलोकेशन रहेंगे, वो भी आएगी, और सुपर न्यूमरी की एलोकेशन भी आएगी। आप उन दोनों में से तब चूज कर सकते हैं कि आपको बेटर कहाँ जाना है। प्रेफरेंस शीट यही यूज होगी जो आपने सबमिट की है, और इन दोनों में से जहां आपको बेटर लग रहा है वहां ले लीजिए और वहीं फिर अपग्रेड कर लीजिएगा। तो 2 राउंड में जहां मिल रहा है आपको वहां भी आएगा, रेगुलर राउंड में भी आपका नाम आएगा, और आपका सुपर न्यूमरी में भी आएगा। अभी सुपर न्यूमरी और ट्रायल्स के शेड्यूल बहुत जल्द हम नोटिफाई कर देंगे। ओके। कल से जब हमने सीसैस फेज 2 स्टार्ट किया है, तो कुछ बच्चों की ईमेल्स आ रही हैं कि मेरे पोर्टल पे जीरो प्रेफरेंस दिखा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है जीरो प्रेफरेंस का? उनको समझ नहीं आ रहा है जीरो प्रेफरेंस क्यों आ रहा है। ये बहुत क्वेरीज आ रही हैं। देखिए, जीरो प्रेफरेंस के काफी कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये हो सकता है आपने जो पेपर क्लास 12th में पढ़े थे आपने उसमें सीयूईटी नहीं दिया, तो आप मैप नहीं कर पा रहे हैं। या आपने जो किसी भी प्रोग्राम की मिनिमम प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, जो हमारी मोस्टली केसेस में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स है, वो आप मीट नहीं कर रहे होंगे, इस वजह से नहीं दिखा रहा होगा। या बहुत कभी कभी हमने ऐसा भी पाया है पिछले 2-3 सालों में कि कुछ बच्चे लैंग्वेज का पेपर नहीं देते। और लैंग्वेज हमारी एक ऐसी है जो हमारी हर प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी है। अगर आपने लैंग्वेज नहीं दिया है तो अनफॉर्चुनेटली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सो इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा। ये केस स्पेसिफिक है, इसका थोड़ा जेनरिक आंसर देना मुश्किल है। जीरो प्रेफरेंस से पहले एक बार आप ये भी देख लीजिए कि आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में आप एलिजिबल थे भी। अगर वहीं पर ही आप एलिजिबल नहीं है तो नेचुरली आपको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिखेगी डालने के लिए। और एक बार फिल्टर भी चेक कर लीजिए, हो सकता है आप हाँ, गलत फिल्टर्स लगा रहे हो, एग्जैक्टली इसलिए फिल्टर्स। आपको नहीं दिख रहे हो। आप चाह रहे हैं बी बी बीकॉम ऑनर्स इन इन लेट्स से
वन कॉलेज वेयर इट इज नॉट इवन ऑफर्ड, तो वो फिर आपको जीरो प्रेफरेंस में ही दिखाएगा। तो ये बहुत सारे रीजन है, जैसे सर कह रहे हैं, देयर इज नो वन आंसर। तो ये सब चेक पॉइंट्स है जिनको आप देख सकते हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप हमें लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चे हमें लिख सकते हैं, हम उनको बता देंगे देख के क्या इशू। और फेज वन हमारा काफी टाइम से ओपन है। सोशल मीडिया पे कई ऐसे रूमर्स है कि फेज वन बंद हो गया है या होने वाला है। इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट है कि कब फेज वन बंद होगा? हमारा फेज वन तो अब टू अभी चल ही रहा है हमारा, और उसकी तो हमने डेट अनाउंस कर ही रखी है। फेज वन की कोई लास्ट डेट वगैरह है हमारी? कोई नहीं, फेज कोई टू के लास्ट साथ बंद होता फेज है, टू के साथ बंद होगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब सीयूईटी के मार्क्स आ जाते हैं तब हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो फेज वन फेज टू हमारे दोनों चलते रहेंगे। फेज टू दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है हमारे 7 अगस्त को बंद हो जाएंगे। फेज वन 7 अगस्त को बंद हो जाएगा। एंड कई बच्चे ये बार बार पूछते हैं कि सर इस कोर्स की कट ऑफ क्या है? मेरा इतना स्कोर है, क्या मुझे एक्स कॉलेज, क्या मुझे ए कॉलेज, क्या मुझे बी कॉलेज मिल जाएगा? मुझे लग रहा है कट ऑफ के ऑब्सेशन से हम अभी बाहर नहीं आए हैं। देखिए, अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन नहीं होते हैं। जो सीट है और जो आपके पास मार्क्स है उसके, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके 311 नंबर है और इनके भी 311 नंबर, वहां एक सीट है तो जरूरी नहीं है हम दोनों को मिल जाएगी। फिर हम टाई ब्रेकिंग रूल्स लगाएंगे। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कट ऑफ। जैसे पहले होता था कि अगर 95% आई है तो जितने कैंडिडेट्स का 95% से ऊपर है उन सबको मिल जाएगा। व्हाट वी गोइंग टू डू इज दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल टू अस। तो अगर एक सीट होगी फिर हम टाई ब्रेकिंग लगाएंगे जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स के आधार पर बनेगी। तो हो सकता है इन्हें 311 पे एडमिशन मिल जाए और मुझे ना मिले। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो बट नेवरदलेस इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे हम और जानकारी देने की प्रावधान बनाए। सो वी आर वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वेरी सून आपके पास आपकी मार्क्स जो हैं और वो दिखना शुरू हो जाएगा। अनीता, मुझे लगता है आपके सवाल से एक चीज हमें और बच्चों को बतानी चाहिए कि क्योंकि इस बार रॉ स्कोर्स आए हैं और एक ही स्कोर में बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ तो बच्चों को ये भी एलोकेशन में ध्यान रखना होगा, जब कट ऑफ देखते ही पैनिक नहीं करें कि हाँ मतलब इस कट ऑफ पे किसी का हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। सो हैव टू अंडरस्टैंड हाँ कि लास्ट रैंक पे टाई ब्रेकिंग अप्लाई होगी। तो टाई ब्रेकिंग चैप्टर हमारा एक बार जरूर पढ़ लें सारे बच्चे, तो उनको थोड़ी खुद भी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे टाई ब्रेकिंग लगी और क्यों उनको एलोकेशन नहीं हुई और क्यों किसी और को हुई। और हो सकता है हम, और जैसे मैंने आपको बताया, वी आर वर्किंग विद अ बैकएंड टीम। वेरी सून देयर बी मेनी मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल बी अवेलेबल। आपने देखा होगा, मैंने आपको जो आपको सीसस फेज 2 दिखाया, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको अवेलेबल कर दी है। और भी इन्फॉर्मेशन कि आपका क्यों रह गया, क्यों नहीं आया, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके प्लेटफॉर्म पे हम दिखाएंगे जब एलोकेशन शुरू करें। एक सिमुलेटेड रैंक के बारे में सतनाम सर आप लेने ही वाले होंगे, सो आई थॉट हम पहले ही ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल में हम एक सिमुलेटेड रैंक का भी एक प्रोविजन हमने बनाया हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक जो हमारी 11 अगस्त को शुरू हो जाएगी। 11 अगस्त को आपको अपनी कोर्स स्पेसिफिक रैंक दिखेगी जो अगेन आपके मार्क्स के बेसिस पे होगी। तो आपको दिख जाएगा। फाइनल नहीं होगी ना? हाँ, वो ऑफ कोर्स फाइनल नहीं है। Final। सिमुलेटेड मतलब जितना डेटा हमारे पास उस दिन आया हुआ है, 9 अगस्त तक आया होगा, जब हम प्रेफरेंसेस बंद करेंगे तो उसके आधार पर बच्चों आप सबको आपकी रैंक दिखेगी उस सब्जेक्ट में। और फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस चेंज का एक प्रोविजन दे रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ऐड करे, कोई डिलीट करे अपनी प्रेफरेंसेस, कोई कोई प्रोग्राम ऐड करे, कुछ डिलीट करे, तो फिर हम आपकी फाइनल रैंक पे जाएंगे। ये सिमुलेटेड रैंक जो है, ये कई बार हमारे पास सवाल आता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये इसलिए कि आपको उस समय एक अंदाजा मिल जाए, प्रोबेबिलिटी पता चल जाए कि क्या आपकी रैंकिंग है। बट डेफिनेटली एज सर सेड एंड आई एग्री, दिस इज नॉट फाइनल। It is subject to revision because after that also we will open the platform for 2 days or 1 day to reshuffle your preferences, to reorder, to add and delete. Once that closes, then of course it will be the final ranking. तो सिमिलरिटी रैंक आपको एक पूरा एक बस अंदाजा देता है, प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। जैसे अभी आपने सवाल पूछा था कि बच्चे कहते हैं मेरा स्कोर में तो कहीं आएगा ही नहीं, तो उससे थोड़ा अंदाजा आपको वहां भी लगता है कि मेरा ये स्कोर है, मैंने ये प्रोग्राम भरा है और मेरी रैंक क्या आई है। आप बच्चे तो मतलब पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैंने पिछले 2 सालों में देखा है। बीओआई से पूरी सीट देख लेते हैं, फिर अपनी रैंक देख लेते हैं, पूरा हिसाब लगा के आ जाते हैं, सर मेरा तो यहाँ आएगा नहीं, मेरा तो यहाँ आ जाएगा। सो सिमुलेटेड रैंक काफी हेल्प करेगी आपको और उसके हिसाब से आप ऑल्टर करें। और एक चीज का और बिल्कुल ध्यान रखें, जो प्रोग्राम आपको नहीं पढ़ना है
जिसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर है उसको ना डालें लिस्ट में, क्योंकि अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मेरे को तो इस प्रोग्राम में मिल गया, मुझे तो ये पढ़ना नहीं है। तो Correct. वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगी हाँ. उस समय उसको हटाने की। हाँ, तो एडिशन और डिलीशन नहीं रहेगा, सिर्फ आप रीशफलिंग कर पाएंगे, तो वो मत करिएगा। जिस प्रोग्राम में जैसे सर कह रहे हैं नहीं पढ़ना चाहते तो मत करिएगा। सिमिलरली गर्ल्स के केस में ये कई बार ऐसा आता है प्रॉब्लम कि मुझे एक्स कॉलेज मिल गया, ये तो मेरा बहुत ही दूर है, मुझे अब आप ये वाला कॉलेज दे दीजिए। आप इसका भी ध्यान रखिए। ये सब चीजें आप खुद देख ले भाई, कॉलेज घर से कितना दूर है, कितना पास है, आपको फीस प्रोग्राम कितनी पढ़, है, फीस फीस जरूर देख देख लीजिए, ये सब चीजें आप खुद देख लीजिए, तभी अपनी प्रेफरेंस। और आप, एक रिक्वेस्ट हम और भी करेंगे अपनी प्रेफरेंस शीट से पहले, आप हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर उसको देख लीजिए, उसका डिस्टेंस आपके घर से कितना दूर है, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी कितनी है, फीस कितनी है, कोर्सेज के करिकुलम क्या है, पूरा कोर्स के करिकुलम भी हर वेबसाइट पे दिए हुए हैं, हर कॉलेज ने दिए हुए हैं, हमने भी अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हैं। और हमारे सभी कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ देम आर ए ग्रेड कॉलेजेस, तो इन चीजों का ध्यान रख के ही अपनी प्रेफरेंसेस बनाइएगा, बिकॉज आपकी प्रेफरेंसेस जो बन जाएंगी वो फिर उसी के आधार पर एडमिशन, हम बार बार आपको समझा रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जैसे अपग्रेड बटन में जब हम अपनी सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपग्रेड करने से जो हमारे पास सीट ऑलरेडी होगी, क्या वो सीट हमारे हाथ से चली जाएगी जब हम अपग्रेड प्रेस कर देते हैं? जी, अगर आपने अपग्रेड दबाया है तो इसका मतलब है जो प्रीवियस एलोकेशन आप उसको छोड़ना चाहते हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि हमारी पूरी जो आगे के ऊपर की प्रेफरेंस है वो हमें अलॉट कर दीजिए। तो नेचुरली हम आपको आपकी, जब आप अपग्रेड दबाएंगे और अगर आपके ऊपर की लिस्ट में अगर आप जा पा रहे होंगे आपकी मेरिट और मार्क्स के आधार पर, हम आपको ले जाएंगे, पुरानी सीट आपकी फिर हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। चॉइस नहीं रहेगी फिर चॉइस नहीं रहेगी कि आप कहेंगे कि आप पुरानी भी रखें और आगे की भी रखें। तो आपने अगर अपग्रेड दबाया है इसका मतलब, हाँ, इसके साथ में एक सतनाम सर आप वो फ्रीज वाला भी बता देते हैं। अगर आपने फ्रीज दबा दिया इसका मतलब फिर अब आपको ना ऊपर लेके जाएंगे ना नीचे, ना किसी और कॉलेज में ना किसी प्रोग्राम में। फ्रीज का मतलब है यू आर हैप्पी, नो मूवमेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने फ्रीज दबा दिया तो उसको हम अंडू नहीं कर पाएंगे। फ्रीज का मतलब है आपकी फाइनल एलोकेशन, आप खुश हैं और आपने उसको फ्रीज कर दिया, फाइनल हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात आती है विड्रॉ की। विड्रॉ का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अगर 1,000 रुपए देकर विड्रॉ करेंगे, मतलब विड्रॉल का हमारे 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस भी है। अगर आपको सीट मिल गई, आपने पैसे दे दिए, आपने विड्रॉ दबा दिया, तो विड्रॉ को भी रिवोक नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल का मतलब है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन छोड़ना चाहते हैं। तो सब्सिक्वेंट राउंड में उसका कोई चांस नहीं है, उसे कोई दोबारा सीट एलोकेट नहीं होगी किसी भी तरीके। रेगुलर राउंड्स में तो नहीं है, अगर रूल्स कुछ चेंज होंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। किसी रेगुलर राउंड में फिर आप नहीं आ पाएंगे। रेगुलर, ठीक। कुछ जो बच्चे ईसीए और स्पोर्ट्स वाले हैं उनको बहुत जल्दी है इस चीज की कि हमारे ट्रायल कब होंगे, कब हमारे ट्रायल्स होंगे, कब हमारे जो परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रायल्स हैं या स्पोर्ट्स के ट्रायल्स हैं वो कब होंगे, क्या उसकी डेट होगी, इसके रिगार्डिंग कुछ वो अपडेट? सीखने के लिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बताया भी था कि उसका एडमिशन्स हम थर्ड राउंड के साथ करते हैं, तो उसके जो ट्रायल्स होंगे उसका अभी शेड्यूल वेबसाइट पे अनाउंस होना है। तो स्टूडेंट्स जो भी इनमें लेना चाहते हैं वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें, और उस पर शेड्यूल अनाउंस होगा और उसको ध्यान से देखें और उस जगह पे उस समय रिपोर्ट करें, क्योंकि ट्रायल्स एक बार हो जाते हैं तो ट्रायल्स दोबारा नहीं हो सकते। तो ये चीज उनको ध्यान रखनी है कि ट्रायल मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर ट्रायल मिस कर दिया फिर उनको उस कैटेगरी में बहुत ही मुश्किल होगी एडमिशन लेने में, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रायल के सारे नंबर तो लूज कर देंगे। सो ये उनको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, इसी बहुत जल्दी, स्पोर्ट्स हाँ बहुत जल्दी शेड्यूल आ जाएगा। और अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं कि किस कॉलेज में क्या ईसीए है, तो वो लिस्ट भी कॉलेज की वेबसाइट पे देख लें, नहीं तो हम हमारी वेबसाइट पे भी डली हुई है, वहां पे भी देख सकते किस कॉलेज में किस ईसीए में कितनी सीटें हैं, ये सब वेबसाइट पे हमारी डली हुई है। आप यूजी एडमिशन के अंदर ईसीए स्पोर्ट्स के टैब में जाएंगे तो आपको सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा। और एक इंफॉर्मेशन और है, इस बार हमने पिछले साल हमने एक वेलफेयर स्कीम के अंदर एक कैटेगरी शुरू की थी, ऑर्फन्स की, मतलब जिनके माँ बाप नहीं है वो इस स्कीम में आ सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। हर कॉलेज के हर प्रोग्राम में 2 सीटें, एक मेल और एक फीमेल के लिए हमने निर्धारित की थी, सुपर न्यूमरी फॉर ऑर्फन स्टूडेंट्स। अब लेकिन ऑर्फन की परिभाषा क्या है, ऑर्फन की वो परिभाषा काफी दिक्कत आती है इसमें। Yeah. जी।
तो हमारे पास बहुत क्वेरीज आती है। ऑर्फन का मतलब है आपके दोनों माता पिता नहीं है, मतलब नहीं इन द सेंस दैट वो दे आर नो मोर अलाइव। सेपरेटेड डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब है या तो आप किसी ऑर्फनेज में थे, या आपके दोनों माता पिता अब नहीं है और तो उनका डेथ सर्टिफिकेट। ऑर्फन का मतलब ये नहीं है कि एक चले गए हैं, एक की डेथ हो गई है और दूसरे के साथ अब नहीं रह रहे हैं या उनसे सेपरेटेड है, देन यू आर नॉट एन ऑर्फन। तो अगर आपने ऑर्फन का क्राइटेरिया देना है तो आपके पास दोनों पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए या किसी ऑर्फनेज का। एक और हमने जो इस बार सुपरन्यूमररी ऐड किया वो है सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट, ऑफ अ पेयर ऑफ पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि आप इकलौती बच्चा है, यानी एक ही बच्चा है उन पेरेंट्स का और वो भी लड़की है। अगर ऐसे क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड का बेनिफिट भी ले सकते हैं। हर प्रोग्राम में एक सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। तो आई होप यू मेड क्लियर कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये नहीं कि एक भाई और एक बहन है तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं बनेगी। आप एक ही बच्चा है माँ बाप का और वो लड़की है तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये कुछ हमारी सुपर न्यूमररी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो हमने पिछले साल शुरू की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसमें ऑर्फन्स के लिए तो फीस भी नहीं है, ऑर्फन की फीस भी सिर्फ 10 रुपए है। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे को इससे फायदा हो सके तो वो जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो मुझे लगता है ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि लास्ट ईयर हमने ऑर्फन्स की फीस नहीं ली थी। तो हाँ। काफी क्वेरी हमारे पास ये भी है कि सर हमारी कोई भी फीस नहीं है, तो हाँ। पोर्टल जरूर चेक करें और वो फीस हाँ। जो हाँ। नॉमिनल है वो जरूर पे करें। 10 रुपए है अगर फीस। आपने वो नहीं या पे करी तब आपका एडमिशन नहीं हो हाँ। पाएगा, तो वो जरूर ध्यान रखें। हाँ। बहुत नॉमिनल फीस है, जैसे मैम ने बताया 10 रुपए है, लेकिन वो जरूर पे करें। कि मतलब ये ना सोचें कि आप बिल्कुल भी फीस नहीं है इस। एक अवेयरनेस के रिगार्डिंग ही है कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए कि जब सीट एलोकेशन हो जाती है, सीट एलोकेशन होने के बाद क्या कॉलेज कोई बच्चे को कॉल करता है फी पे करने के लिए, भाई आप फी पे कर दीजिए, और फी के लिए क्या कोई अकाउंट में पेमेंट करनी होती है? कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, आपको कोई कॉल नहीं जाएगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी किसी को कोई कॉल करता भी नहीं है। हम आपको बल्क एसएमएस मेल जरूर जाती है जिसमें आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कब से कब विंडो ऑन है। इन इन एनी फेक आपके पास एडमिशन का शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे, उसको देखते रहिए। फीस का भी शेड्यूल उसी में दिया हुआ है। और वो जो हमारे तरफ से भी ईमेल्स कोई कॉल नहीं ईमेल्स भी जो है वो हमारे डोमेन की ईमेल से जाती हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी से। डॉक्टर सतनाम, मैं एक चीज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बताना चाहूंगा कि आपको जो फी पेमेंट करनी है वो आपको सिर्फ अपने डैशबोर्ड से करनी है। कोई ईमेल में लिंक आता है उस पर आपको पेमेंट नहीं करनी है। अक्सर बच्चे हमारे गूगल में सर्च करते हैं डीयू की लिंक पेमेंट और उसमें जाके कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, आपको अपना लॉगिन करना है डीयू की वेबसाइट पे, अपने डैशबोर्ड में जाना है और वही जो फी पेमेंट का लिंक है वहीं से पे करना है। और बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं किसी भी और मोड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। लोग मिसयूज भी करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, कुछ स्पैम ईमेल में लिंक चले जाते हैं, लोग वहां पेमेंट कर देते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। सो विद दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू एम्फेसाइज ऑन वन पॉइंट कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं डीयू के बारे में, वो आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें, du.ac.in या admission.du.uod.ac.in पर देखें। और जो हमारा शेड्यूल है उसको ध्यान से देखें, उसको एडहियर करें। देर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे या और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप बिल्कुल प्रॉपर सोर्स पे जाके उसको ध्यान से सही इंफॉर्मेशन को देखें और उसको फॉलो करें। और बुलेटिन ऑफ सबसे इंफॉर्मेशन अगर हमारा अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, है। अवेलेबल है, उसको पढ़ें। हमारे हेल्प डेस्क हैं, आप चैट में लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, और इन केस अगर कॉलेज को भी कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई बात करनी है अगर कैंडिडेट से, तो उसके लिए वो डैशबोर्ड पे ही क्वेरी के थ्रू ही रेज करेंगे, कोई अ, या ऑफिशियल ईमेल आईडी से करेंगे, अपनी किसी पर्सनल ईमेल आईडी से अवॉइड ही करें। आप एक उस पर रिप्लाई करना या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कॉलेज को भी कोई एक क्लैरिटी चाहिए हो। और भी अक्सर जो हमने 2-3 साल में ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही बच्चे एलोकेशन एक्सेप्ट करते हैं 2-3 आवर्स में ही वो फिर मेल लिखने लगते हैं, सर मेरा तो अभी तक न्यू एप्लीकेशन है, अभी तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हुए। तो उनको समझना है कि कॉलेज के पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, दे विल आल्सो टेक सम टाइम टू प्रोसेस देम। सो यू नो द स्टेटस चेंजेस मेनी टाइम्स, वो आपका न्यू एप्लीकेशन से होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, सर्टिफिकेट वेरीफाइड,
then approved by principal, और तब आपको फी पेमेंट का लिंक आएगा. So there are multiple stages in between, और फाइनल स्टेज पे जाके ही आपको फी लिंक आएगा. फी लिंक डैशबोर्ड पर ही आएगा. तो थोड़ा सा सब्र रखें, अपने डैशबोर्ड को रेगुलरली चेक करते रहें, और मतलब बहुत जल्दी पैनिक ना करें, क्योंकि बच्चे फोन करना शुरू कर देते हैं, मेल करना शुरू कर देते हैं कि सर हमने तो सुबह एक्सेप्ट किया था, अभी तक फी पेमेंट लिंक नहीं आया. तो थोड़ा सा मतलब आराम से पेशेंटली काम करें. और हम कोई लेट फी देके कोई फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं देते, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, तो कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं हमसे लेट फी दे दीजिए. कि अभी हमारे पास, मैं आज सुबह ही देख रही थी, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2,90,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड. तो आपके पास कोई हम लेट फी लेकर, वो तो सीट आगे चली जाएगी ना, आपने नहीं ली तो हमारे पास आगे चली जाएगी. तो ऐसा कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं है कि हम लेट फीस करके आपका देंगे. तो यू शुड बी केयरफुल ऑन द डेडलाइंस. इन एनी केस सेशन शुरू होने वाले हैं, तो आपको तो और भी विजिलेंट होना चाहिए. कि आप अपने फोन पे लगा लीजिए ना, कैलेंडर में नोटिफिकेशन लगा लीजिए, अलार्म्स लगा लीजिए कि आपको फीस देनी है. शेड्यूल जो है हमारे वेबसाइट पे दिया है उसको सेट कर लीजिए, अपने अलार्म फोन पे नोटिफिकेशन अलार्म लगा ले, लेकिन फी पेमेंट लैपटॉप पे आराम से बैठ के करना. हाँ, करेक्ट. हाँ, इससे एक चीज और आई वांटेड टू शेयर दैट प्लीज अपने प्रेफरेंसेस जो है किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन से ना करें. हमने देखा है फोन पे बच्चे कर रहे हो तो फोन पे कितनी छोटी सी स्क्रीन पे क्या ही दिखेगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा जो प्रोसेस है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन पे ना करें. फोन से मिस्टेक्स होती है. थोड़ा सा ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है. कुछ कुछ फील्ड्स आपके रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं हमें तो ये दिखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, ये भी टिक करना था. सो वो ध्यान रखें. स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन में बैठे आराम से करें. पेमेंट करते हुए भी ध्यान रखें इस बात का. ये भी देखिए कि आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट है, हाँ, तभी पेमेंट की तरफ आगे बढ़े. ठीक है मैम, हम काफी क्वेश्चंस ले चुके हैं जो बच्चों ने हमें रेज किए थे, और बाकी सर ने हेल्प डेस्क का बता ही दिया है कि हम बच्चे हेल्प डेस्क पे भी वो भेज सकते हैं. हेल्प डेस्क पे हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है जो आपको कॉल्स पे, चैटबॉट पे और ईमेल्स के थ्रू सब जगह आपको रिप्लाईज देने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार रहती है. थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सर, टाइम निकालने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए. Thank you, everyone. We look forward to you. We may do one or more webinars depending on the questions that we receive. अगर हमें लग रहा होता है कि common questions हैं, तो हम जरूर एक और वेबिनार करेंगे आपको और जानकारी देने के लिए, शेयर करने के लिए. ECA और स्पोर्ट्स के ऊपर भी और जानकारी के लिए हम कोशिश करेंगे कि और वेबिनार करने के लिए. और प्लीज ओनली लुक एट द ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर ऑल इंफॉर्मेशन. आप हमारी वेबसाइट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की admission.uod.ac.in पे ही सारी जानकारी मिलती है, और इसी पे देखिए सभी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी. सो विद दिस नोट आई थिंक ये जो वेबिनार ये देख रहे हैं, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल यूनिव ऑफ दिल्ली पे अवेलेबल रहेगा. आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं कितनी बार, और कोई क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं. So good luck to everybody, and please start filling your preferences. Don't wait for the last minute. And I think we are also very eager to meet our fresh lot of students. Exactly. I think on behalf of University of Delhi, on behalf of the admission branch, on behalf of our registrar sir and our vice chancellor sir, we welcome you all, and we hope that the admission process is going to be very smooth for all the aspirants who wish to take admission to university. Thank you so much, and good luck.